ये फिर हाँ चले, आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। जी सबा, चलो आप स्टार्ट करो। Mrs. Mrs. Shehnaz, wife of Mr. Asif, 32 years of age, housewife, with no formal education, resident of Bhati Gate, half hour distance from the Index Hospital, married for 7 years, Nully Paris, with regular menstrual cycle and last menstrual period 22nd October 2021. Admitted irregular menstrual cycle, admitted to outpatient department of Index Hospital 7 days back with complaint of inability to conceive for 7 years, heavy menstrual bleeding for 3 months, 3 years, and irregular vaginal bleeding for the last 6 months. My patient Manak started at the age of 12 regular cycle, used to bleed for 7 days after every 28 days, soaking 2 to 3 homemade pad, fully soaked pad per day, with no history of dysmenorrhea, dyspareunia, intermenstrual postcoital bleeding. But for the last 3 years, she has experienced a change in her cycle such a way that the cycle length is not increased, but the bleeding, she has to soak 10 homemade fully soaked pad per day associated with clots, and she has to change the pad at night, with no history of dysmenorrhea, dyspareunia, intermenstrual postcoital bleeding. But for the last 6 months, there is a no specific pattern of the cycle. Sometimes there is a heavy flow and sometimes scanty flow. During heavy flow, she used to soak 10 pads per day, and during scanty flow, 1 to 2 pads per day. There is a no history of preceded amenorrhea, IUCD insertion, use of blood thinning drugs, mass, abdominal mass coming out of vagina, weight loss, loss of appetite, or family history of breast, colorectal, ovarian, endometrial cancer. No history of easy bruisability or bleeding from any body orifices, but there is a history of shortness of breath and easy fatigability for the last 2 years. And her diet was not adequate in meat, milk, egg, green leafy vegetable. There is a no history of the abdominal vaginal discharge, lower abdominal pain, urinary or bowel complaints. She took some red color capsules for her complaint, but it was temporarily relieved. This is the first marriage of both partners living together since marriage, with coital frequency of 2 to 3 times per week with no coital difficulty, and couple is aware of the fertile period. There was no history of acne, hirsutism, weight gain, headache, blurring of vision, nipple discharge, heat and cold intolerance. Her husband is a smoker, used to take 2 to 3 packs per day with no history of childhood trauma, surgery, mumps or carditis, radiotherapy, chemotherapy, use of drugs in the form of antidepressants or antipsychotics, or any chronic illness like diabetes mellitus or hypertension. As a part of her fertility workup, she took medication starting from the second day of the cycle to fifth day, 3 to 4 times, followed by transvaginal ultrasound at the 11th day of the cycle. And size of the follicle was normal according to the patient. Her tubal patency was checked 2 years back and it was normal according to the patient. Her husband's semen analysis was done 2 months back and it was normal according to the patient. 1 week back, she came to the Index Hospital for her menstrual problem and due to infertility workup, where she was admitted. Her blood and urine tests were done, ultrasound has been done, and she has been told about a mass abdomen, but the exact nature and the location of the mass she don't know. And her hemoglobin was found low, and she was transfused 4 units of blood. The last blood was transfused 1 day back with no reaction reported. And further plan of management has not been discussed with the patient up till now. Menstrual cycle has already been described. Couple never practiced contraception and pap smear was never taken. There is a no history of hypertension, diabetes, ischemic heart disease, asthma, tuberculosis in the patient and in her family. Surgical history is non-significant. She is non-smoker, non-addict, has normal sleep and bowel habits with no drug allergy. Her husband is a laborer, of 35 years of age, of average height and build, and her monthly income is 20,000 per month, and basic necessities of life are met with difficulty. A young lady, value oriented, timeless, and person, answer my question intelligently with a BMI of with height 5 foot 2 inches and weight 50 kilogram, making a BMI of 22 kilogram per meter square, with pulse 86 beats per minute, regular group volume, blood pressure 1
120-80 millimeter of mercury. She is afebrile and respiratory rate 16 breaths per minute. There is no pallor cyanosis, jaundice, chylonychia. Thyroid is not enlarged. Accessible lymph node not palpable. No spinal deformity. No sacral and pedal edema. No lump palpable in four quadrants of both breasts. First and second heart sounds are audible with no edits on. Normal vesicular breathing with no edits on. On inspection, abdomen is protuberant. In the abdomen is flat, moving symmetrically with respiration with no visible vein pulsation, stria, scar mark, and hernia orifices are intact. On palpation, abdomen is soft, non-tender. A mass of 14-week size mass in the region of hypogastrium and left iliac fossa. Irregular margin and ill-defined margin, irregular surface, firm inconsistency, non-tender, mobile, and lower limit is not reachable. Percussion note is dull on the mass and resonant in the flanks, and there is no visceromegaly. On vaginal examination, vulva is normal looking with normal hair distribution with no discharge or bleeding coming out from the introitus. On speculum examination, cervix is normal looking, slightly tilted towards the right side, and there is no discharge of bleeding coming out from the cervical os. Pap smear taken, dried and fixed, and later vaginal wall were healthy. On vaginal examination and by manual examination, a mass of 14-week size of above mentioned dimension not felt separated from the uterus, and there is a fullness in the left fornix. चलें, गुड। ठीक है, अच्छे हिस्ट्री थी आपकी। ऑब्वियसली इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है, बट वही बात है, वैसे तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन आपने बहुत अच्छा बोला। हिस्ट्री एग्जामिनेशन जो था वो टाइम मैनेजमेंट वाज वेरी गुड ऑल्सो। आपकी स्पीच बहुत क्लियर थी, पर वही बात है कि मतलब पास शायद हो जाओ 60% वाला तो था, बट नॉट 70%, क्योंकि एग्जाम में 70% बोलना है तो फिर आएंगे 60%। उसकी वजह ये है कि अगर ऐसा हो ना हिस्ट्री एग्जामिनेशन के आगे जाके कोई ब्लंडर भी हो जाए तो चीज कवर हो जाए। अदरवाइज यू कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बात ये नहीं है कि कवर हुआ या नहीं हुआ। एक चीज है प्रेजेंटेशन की। आपका केस है सब फर्टिलिटी का। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात की जाए, your patient has subfertility for 7 years and then the menstrual problems starting 3 years back, etc etc। तो जब आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस की तो आपने अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की सेकंड चीज को पहले ले आए। पेशेंट है सबफर्टिलिटी का, लेकिन पहले हम बात सारी करते रहे ब्लीडिंग की, ब्लीडिंग का साइकिल को एक्सप्लेन करते रहे। पेशेंट सबफर्टिलिटी का उसका बहुत ज़्यादा पुराना मसला था, उस पे बात करने से पहले हम बात कर रहे थे कि डीडी की बात कर रहे थे जिसमें मैलिग्नेंसी इन द फैमिली, और वो सारा वो लिंक बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बॉर्डर लाइन है कि अगर आगे बहुत अच्छा करोगे मैनेजमेंट तो फिर इस हिस्ट्री पे आप पास हो सकते हो। अदरवाइज दिस हिस्ट्री वाज बॉर्डर लाइन। इसको आपने प्रेजेंट ऐसे करना है कि इफ शी इज अनएबल टू कंसीव फॉर द लास्ट 7 years और फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स फॉर द लास्ट 3 years, तो आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होगी उसकी सबफर्टिलिटी से कि शी इज मैरिड फॉर 7 years और प्राइमरी सबफर्टिलिटी के साथ है। एंड देन उसके बाद जो 4-5 चीजें हैं कि बोथ हस्बैंड वाइफ आर लिविंग टुगेदर फॉर 7 years, उनकी कोई कोइटल प्रॉब्लम पहले थी या नहीं थी, या अब कोई प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है मैस से डेवलप हो गई हो, and then the coital frequency, and then it's the first marriage of the couple, और वो सारी बातें। उसके बाद ये आपका पहली 4-5 लाइंस होनी चाहिए। उसके बाद आप या तो बिकॉज वी नो समथिंग इज लिंक्ड विद सबफर्टिलिटी, क्योंकि उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल हैवी हो गए, इरेगुलर हो गए, उस तरह का मसला हो गया, तो यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम राइट हियर। या फिर आप इवन बात कर सकते हो उसकी तीनों चीज़ों की कि उसने क्या क्या रिपोर्ट्स, बिकॉज 7 सालों में पेशेंट ने बहुत कुछ करा लिया होता है। तो जब आप ये सारी बातें कर लो सबफर्टिलिटी में कि उसको 7 years से लिविंग टुगेदर है, कोइटल हिस्ट्री, एंड देन कि इट्स द फर्स्ट मैरिज ऑफ द कपल, और वो सारा। उसके बाद का अगर आप ये बात कर लो कि उसने अब तक कोई हस्बैंड सीमेन एनालिसिस कराया या नहीं, और उसका ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट हुआ या नहीं, और फिर आप मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेके स्टार्ट कर दो। इसकी वजह ये है क्योंकि देखो पहले आपने
बात की सब फर्टिलिटी के इस केस में, पहले आपने बात की सारी उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल सारा एक्सप्लेन किया, उसके बाद आपने उसकी कुछ ना कुछ सब फर्टिलिटी की बातें की, फिर आपने उसके हस्बैंड की बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री और काइटस से लेके पता नहीं क्या और क्या नहीं कहा, लेकिन आखिरी लाइन बोल दी कि हस्बैंड सीमन एनालिसिस नॉर्मल है। भाई ठीक है, देखो ना, जब अगर यही लाइन पहले बोल दी जाती कि हस्बैंड सीमन एनालिसिस नॉर्मल है, तो चाहे उसके मियाँ को हिस्ट्री में चलो मम्स हुए हैं या और काइटस हुआ है या फिर उसको हिस्ट्री ऑफ फॉल हो गई थी या कोई ट्रॉमा हो गया, तो ये कोई चीज इतनी हमारे लिए लिंक नहीं रह जाती कि उसकी क्वार्टरल फ्रीक्वेंसी भी ठीक है, हस्बैंड सीमन एनालिसिस भी ठीक है, तो फिर इतना ज्यादा। लेकिन नो डाउट हमने डीडी तो पूरा कवर करना है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर हस्बैंड सीमन एनालिसिस नॉर्मल है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, या इवन इफ यू हैव सीन द रिपोर्ट, तो आप बिल्कुल हिस्ट्री में HOPI में इस चीज को डिलीट ही कर दो उसके डीडी को। लेकिन ये चीज अगर आप पहले ही बता दो कि वो नॉर्मल है, ताकि एग्जामिनर जो सुन रहा है वो इरिटेट भी ना हो ना कि नो 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 नो, और एंड पे आके HSA इज नॉर्मल। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको शुरू में बता देना चाहिए कि HSA इज नॉर्मल, हाउएवर देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ दिस इन हस्बैंड ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि पेशेंट का, जब आपने पहला तो सब फर्टिलिटी के वाली लाइनें बोल के जब आपने तीनों उसकी इन्वेस्टिगेशंस की बात की, तो पता चला कि पेशेंट ने बताया कि जब उसका ट्यूबल टेस्ट हुआ था तो उसमें ट्यूबें भी बंद थी। ठीक है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फिर आप क्या लिंक निकालोगे? आप पहले उसकी सारी सब फर्टिलिटी की 4-5 लाइनें, जो हर सब फर्टिलिटी के पेशेंट में हम इसी तरह ही स्टार्ट करते हैं कि दे आर लिविंग टुगेदर और नॉट, और मतलब इफ दे नो अबाउट द फर्टिलिटी पीरियड एंड व्हाट्स द क्वार्टल फ्रीक्वेंसी, और उसका उनका कोई क्वार्टल कंप्लेंट तो नहीं है, एंड देन इट्स द फर्स्ट मैरिज ऑफ द कपल। और उसके बाद हम उसकी टेस्ट की बात करके, नाउ वी नो दैट शी हैज गॉट अ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम एंड शी हैज गॉट अ ट्यूबल ब्लॉकेज। तो आपने पहले इन दो चीजों की डिटेल्ड हिस्ट्री बोलनी है, ताकि एग्जामिनर भी सुन ले कि आपका एग्जैक्ट डीडी क्या है। उसके बाद आप बेशक उसका हेड टू टोस्ट जो सारा सब फर्टिलिटी का डीडी में आता है वो सारा कवर करोगे, और फिर हस्बैंड का बताओगे, बट यू हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द बिगनिंग दैट हस्बैंड सीमन एनालिसिस इज नॉर्मल। हाँ, हाउएवर एंड पे आप नो नो करोगे। आपने, आपके केस में ये हो गया कि पेशेंट की सब फर्टिलिटी की, instead of talking about her sub fertility, you started with the menstrual problem. मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में आप में अब हुआ ये कि जब आप मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की डीडी निकालने बैठ गए, तो अननेसेसरी बातें सुनने को मिल रही थी इस स्टेज पे, जो कि इस स्टेज पे नहीं, अभी शुरू में ही नहीं ना, पहले पैराग्राफ वाली बातें तो ये नहीं होती ना कि देर इज नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, या देर इज नो हिस्ट्री ऑफ ब्लड थिनिंग ड्रग्स दैट ही हैज टेकन। ये बातें इतनी जल्दी करने वाली नहीं थी, पहले सारी काम की बातें करने वाली थी। ठीक है, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर आपने जी यही मैडम। 70 मार्क्स वाली बनानी है, 70% वाली, विच जो कि आपका टारगेट वही है, क्योंकि आई एम टेलिंग यू, बार बार हर क्लास में मैं कहती हूँ कि पासिंग रेट भी कम होता है, बिकॉज हर कोई वहाँ तैयारी करके आया होता है, हर कोई सारे इम्तिहान पास करके, दिस इज द लास्ट एग्जाम, दिस वाइवा एग्जाम इज द लास्ट एग्जाम, वो वहाँ पे वही लोग आके बैठते हैं जो कि सारी तैयारी करके आए होते हैं, तो इसलिए कंपटीशन इज वेरी टफ। इसलिए एग्जामिनर जो जिन लोगों का वाइवा ले रहे हैं, ऑब्वियसली एक नेचुरल और ऑटोमेटिक सी चीज़ है कि आपका एक तरह से कंपैरिजन भी हो जाता है, बट देन अगेन उस एग्जामिनर को भी तो कुछ बहुत ही ठीक किस्म का आंसर चाहिए ना। इस तरह नहीं चाहिए कि कोई भी, मतलब यू आर नॉट जस्ट ट्रेनी नाउ, अब उन्होंने इसके बाद आपको कंसल्टेंट बनाना है, तो आपका इतना अच्छी हिस्ट्री होनी चाहिए। इट शुड बी लाइक अ स्टोरी कि अगला बंदा सुन रहा है और उसको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि पेशेंट का मेन मसला है क्या। उसका मसला देखो, मैडम मैं जैसे पता क्यों चला जी। ये पेशेंट आई थी, इसका इस टाइम फर्टिलिटी के लिए वो सिर्फ ये कहती थी कि 7 ईयर से वो कंसीव तो मतलब कर रही है, ट्राई कर रही है, लेकिन इस टाइम उसको ज्यादा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो है वो इरिटेट कर रहा था, और पेशेंट कहती थी कि हाँ मैं फर्टिलिटी भी चाहती हूँ, मतलब उसको इस टाइम ज्यादा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो था वो देखो, उसका ज्यादा वो तो इशू था, जाहिर है, लेकिन वो मैंने तो जाहिर है, में उसको वो तो क्योंकि उसकी जाहिर है, वो यही फर्टिलिटी की कहेगी विश भी कि थी। उसको ज्यादा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है। देखो, दो चीजें अलग हैं। आपका या तो केस है फर्टिलिटी विद मैस, या आपका केस है कि फर्टिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड मैस देयर, क्योंकि आपकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल बदल जाएंगी। आपका केस फर्टिलिटी विद मैस है। यही पेशेंट अगर उसकी फैमिली कंप्लीट होती है और फर्टिलिटी प्रॉब्लम ना होती, तो शायद हम उसको कोई और मैनेजमेंट भी ऑफर करते, जो हम फर्टिलिटी वाले को नहीं करते। ठीक है ना।
यू नीड टू नो जी कि आपकी प्रायोरिटी अबाउट द पेशेंट क्या है और आपने उसी तरीके से प्रेजेंट करना है। बेशक वो नहीं कह रही, लेकिन इस हद तक तो फर्टिलिटी उसका प्रॉब्लम ना होने वाला प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि वो शी वुड अलाउ यू टू रिमूव हर यूट्रस इफ नीडेड। नो, शी विल नेवर, बिकॉज सब फर्टिलिटी इज अ प्रॉब्लम फॉर हर। ठीक है ना? तो जी। आपने उसकी ट्रीटमेंट इसी तरह ही करनी है कि सब फर्टिलिटी इज अ प्रॉब्लम। और देखो, जब जो भी आगे हम उसका प्रोसीजर करेंगे या जो भी उसका करेंगे, तो हमने उसकी फर्टिलिटी कंजर्विंग ही ट्रीटमेंट लेके चलना है। हमने ऐसे नहीं चलना, मतलब इफ यू लेटर ऑन डिसाइड, फॉर एग्जांपल इफ यू डिसाइड फॉर मायरीना, विल यू प्लेस मायरीना इन हर? नो। उस वक्त उसे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम याद नहीं आएगी, उस वक्त उसे अपनी फर्टिलिटी याद आएगी। ठीक। तो आपने ऐसे पेशेंट में, लेकिन ऐसा पेशेंट होता है, आप यस और नो होता है फर्टिलिटी इज अ प्रॉब्लम और नॉट, बहुत कम होते हैं, लेकिन वाकई जैसे आई हैव सीन अ कपल जो कि मेरे पास आकर कहते थे कि फर्टिलिटी की हमसे बात ना करें आप, वी जस्ट नीड अ ट्रीटमेंट, हम यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। एंड इवन इफ यू ऑफर मायरीना टू देम, दे आर सेइंग कि हमारे लिए फर्टिलिटी का नहीं है, हमारा है ही ये मैनेजमेंट, और हमें ये करना है, जितना कंजर्वेटिव लेके चलना है हम करेंगे, हमें फर्टिलिटी साइड पे, तो वो तो और चीज़ है। बट इस पेशेंट की तो जो मैनेजमेंट आपने करनी है, जब मैनेजमेंट के वक्त इसको अपनी फर्टिलिटी याद आनी है, तो इट मीन्स फर्टिलिटी इज अ प्रायोरिटी फॉर हर। नेचुरल सी बात है। इस वक्त तो वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ही कह रही है, बट ट्रीटमेंट और हर चीज में फर्टिलिटी ही सबसे पहले आनी है। तो ये चीज नहीं होती है। अब इसी तरह देखो, जब आपने बात की है ब्लीडिंग की, ब्लीडिंग के साथ ये बात आपने आगे कहीं जाके की, एंड पे आगे कि उसकी ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन वगैरह कम आया था एंड शी वाज गिवन वन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये ब्लीडिंग के मैडम फोर साथ, ब्लड सॉरी, 4 ब्लड ट्रांसफ्यूज 4 ब्लड था। उसे लग गए। अब ये जो 4 ब्लड उसे लग गए, तो इसका मतलब है किस कदर अनीमिया होगा। तो अनीमिया के सिम्टम्स आपको ब्लीडिंग के साथ ही मेंशन करने चाहिए थे। ठीक है? अनीमिया भी के भी तो उसको कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, पैलर होएगा, मैडम मैंने वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में अनीमिया बताया था, वो HOPA में बताया था ब्लीडिंग के साथ। ब्लीडिंग साथ बता दिया था। ठीक है, वो फिर ठीक है, हो सकता है मैंने मिस कर दिया। तो बहरहाल आपने वो अनीमिया के सारी जो सिम्टम्स वाली बातें जो मैंने पहले भी अपनी कई क्लासेस में किया, वो सारा आपने उसके साथ ही बोल देना। तो इस पेशेंट के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ HOPI होगा वो ये होगा कि शुरू में आप सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री बोलोगे जिस तरह मैंने बताया, उसके बाद आप उसके बेशक यहीं पे इन्वेस्टिगेशंस की बात कर दो कि अब तक उसने हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, अल्ट्रासाउंड और ट्यूबल टेस्ट के लिए यही किया। उसके बाद, बिकॉज नाउ यू नो दैट देयर मे बी अ कॉज व्हिच मे बी एसोसिएटेड विद हर सब फर्टिलिटी व्हिच इज ब्लीडिंग, तो आप उसकी ब्लीडिंग के पैटर्न को पूरा एक्सप्लेन करोगे। ठीक है? उसके बाद आप उसके साथ ही अनीमिया को एक्सप्लेन कर दोगे, देन यू विल रूल आउट ऑल द पॉसिबल कॉजेज फ्रॉम हेड टू टो इन हर, because you are saying that tubal patency was also normal, which then rules out the causes for tubal blockade also। तो वो सारा आप हेड टू टो सारा फीमेल की सबफर्टिलिटी के कॉजेज रूल आउट कर दोगे, और फिर मेल की जैसे आपने बताया एंड पे आप मेल का भी कर दोगे। इस तरीके से अगर आप चलो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज हिस्ट्री में यू डिड नॉट एक्चुअली मिस एनीथिंग, ना उसके DD के पॉइंट्स है, ना उसकी एक्सप्लेनेशन उन सब चीज़ों में। अदरवाइज हिस्ट्री वॉज वेरी गुड। एंड देन उसके बाद जो एग्जामिनेशन था, मुझे आपका एग्जामिनेशन बहुत पसंद आया, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से बोला। बिल्कुल ठीक था। ऐसी ज़बरदस्ती की बात उठाने वाली बात है कि जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है, एंड पे विस्ट्रोमेगैली नहीं बोलनी। जब आप अपना हमारा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की पैल्पेशन बोल रहे हैं, यू हैव डिस्क्राइब द मैथ सो ब्यूटिफुली, तो मैथ्स के बाद एकदम से विस्ट्रोमेगैली अजीब सा लगा, तो विस्ट्रोमेगैली पहले ही ख़त्म करो, क्योंकि मैथ्स इज समथिंग कि उसके बाद और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट के नो साइंस ऑफ फ्लूइड। वो सारा भी आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया अपने रेजोनेंट नोट का बता के। सो इट ऑल वाज वेरी गुड। एंड बाय मैनुअल भी ठीक था। बाय मैनुअल में अगेन आपने वही मैथ्स डिस्क्राइब उसी तरह ही करना है जैसे आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में किया था, वो आपने दोबारा से डिस्क्राइब नहीं किया बाय मैनुअल में कि फॉर्म है इस तरह के, बॉर्डर्स, मार्जिन, सरफेस, वो सारा कुछ, मोबिलिटी एंड सीम्स टू बी राइजिंग फ्रॉम यूट्रस, वो वाली वही सारी एक्सप्लेनेशन आपने अपने पेल्विक एग्जामिनेशन में भी बोल देनी है। सो आई थिंक अदरवाइज था एग्जामिनेशन बहुत अच्छा था। और एक्चुअली हिस्ट्री वाज आल्सो वेरी गुड। स्ट्रेट पास हो जाने वाली हिस्ट्री तो ये थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वही बात है कि इसे और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर लो ताकि बहुत ज़्यादा सेफ हो जाए। ठीक मैम। ठीक है? जी मैडम। मैम अस्सलाम वालेकुम मैम।
अस्सलाम वालेकुम जी। मैम डॉक्टर आयशा बात कर रही हूँ। मैम ये जी फ्लूइड जी। थ्रिल और शिफ्टिंग डलनेस का प्लीज बता दें कि अगर अब्डोमिनल आपको कोई डिस्टेंशन नजर आ रही है तो ही आपने फ्लूइड थ्रिल और शिफ्टिंग डलनेस पे कमेंट करना है, वरना अदरवाइज We are नहीं not करना। talking about fluid अब thrill or shifting dullness. We are talking about the percussion, right? Call जी it percussion. Don't call it fluid thrill shifting dullness. ठीक है, fluid thrill तो बहुत दूर की बात है, shifting dullness वाली बात होती है, but just call it percussion करनी है या नहीं करनी, ठीक है, टर्मिनोलॉजी ठीक यूज करनी है। परकशन आपने हर पेशेंट में इसलिए करनी है, व्हाई डू वी डू परकशन? टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी फ्लूइड इन द एब्डोमेन और नॉट। क्यों करनी है हर पेशेंट में? देखो इस पेशेंट में तो खैर मैस था। आई एम नॉट सेइंग कि जिस पेशेंट में डिस्टेंशन नजर आए सिर्फ उसमें करनी है, हमें नहीं पता कि जिसमें डिस्टेंशन है वो फैट की डिस्टेंशन है या फ्लूइड की। तो डू वी रियली मीन कि हर ओबीस पेशेंट के अंदर आपने फ्लूइड थ्रिल और वो सारा कुछ करना है? इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। आपने हर गायनी के पेशेंट में परकशन नोट जरूर चेक करना है। इस वाली में तो खैर मैस फील हो गया, मैस के साथ फ्लूइड एसोसिएटेड होता है, फ्लूइड के चांसेस होते हैं ज़्यादा। तो इसके अंदर तो जिसमें आपको मैस मिल गया, जैसे इनको 14 वीक साइज मैस मिल गया था, तो इसके अंदर तो वैसे ही आपकी परकशन बनती थी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई मैस एब्डोमेन पे नहीं मिलता, सिर्फ आपने एक दफ़ा परकशन नोट लेके जाना है अम्बिलिकस तक और उसके बाद लैटरल वॉल तक आपने लेके आना है। अगर आपको वहां पर जाकर डल डल नोट मिला है तो फिर आप करवट दिलाते हैं और फिर आप करते हैं कि अगर डल नोट का मतलब है कि देयर इज फ्लूइड इन द एब्डोमेन, और जब आप करवट दिलाओगे तो फ्लूइड दूसरी साइड पे चला जाएगा और वो डल नोट रेजोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग is positive, which means that fluid in the abdomen is there. जब आपको शिफ्टिंग डलनेस मिलती है तो आप फ्लूइड थ्रिल चेक कर सकते हो। जब आपको शिफ्टिंग डलनेस ही नहीं मिली, विच मीन्स के अगर पेशेंट के अंदर एब्डोमेन में फ्लूइड ही नहीं है तो फिर फ्लूइड थ्रिल नहीं चेक करते, वो वाला स्टेप नहीं किया जाता। मैं क्यों कह रही हूँ कि हर पेशेंट में आपने परकशन नोट करना है, क्योंकि मैथ्स आपको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे ना भी मिले तो पेल्विक एग्जामिनेशन पे मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे आपको मैथ्स नहीं मिला, आपने परकशन नोट नहीं किया एंड यू हैव नॉट चेक्ड पेशेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एनी फ्लूइड इन द एब्डोमेन, और आपने बायोमैनुअल एग्जामिनेशन किया एंड यू फाइंड दैट देयर इज 5 सेंटीमीटर मैस इन द pelvis, और अब आप, because the mass is there and examiner wants to know that whether you found any fluid in the abdomen, अब आप pelvic के बाद परकशन नोट करना है, इज नॉट राइट। इट्स ये कोई सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन नहीं है। सो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जिस तरह हम सारी जिंदगी एमबीबीएस में भी करते रहे कि इंस्पेक्शन, पैल्पेशन एंड परकशन, यही सीक्वेंस होता है हमारे के, हम लोगों को ऑस्कल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती गायनी में। सो हर एक में आपने पैल्पेशन, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन करनी है ताकि आपका वो स्टेप मिस ना हो। आप आराम से कहते हो, जैसे सबा ने भी कहा कि इनका कोई साइन ऑफ फ्लूइड नहीं था या देयर वाज नो शिफ्टिंग डलनेस या देयर वाज रेजोनेंट नोड अदर देन द मास एरिया, तो which again indicates that she could not find any fluid in the abdomen। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप या तो इस तरह से बात कर सकते हो या आप कह सकते हो कि there were no signs of presence of fluid in the abdomen। so हर पेशेंट में आपने परकशन नोट करना है गायनी के केस में, क्योंकि आप कभी भी पेल्विक एग्जामिनेशन के बाद दोबारा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे नहीं आ सकते, ठीक है। आई होप थैंक यू मैम। वेलकम, ठीक है मैडम चलो कई दफा ऐसे होता है कि जब हम परकशन कर रहे होते हैं तो कई जैसे पेशेंट ओबीज होती हैं, मतलब मोस्टली एम्प्लाइकस से बिलो फैट अकोमोलेशन होती है, तो वहां जाके भी परकशन और डल हमें फील होती है, और उसमें डिफरेंशिएट करना कि ये मैस है या देखो, फैट है, ये बड़ा हाँ यू मुश्किल हो राइट। जाता देखो जो तो 20 पेशेंट है उसके अंदर एग्जामिनेशन की फाइंडिंग आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव वैसे नहीं रहती। इट्स जस्ट द मेथड दैट विल बी चेक्ड इन द एग्जामिनेशन, स्पेशली इन केस ऑफ obese पेशेंट्स। आप कह सकते हो कि बिकॉज ऑफ obesity I could not really assess the mass of the size of uterus or the size of mass, and also I could not exactly assess presence of fluid in the abdomen, क्योंकि ओबेसिटी में तो जस्टिफाइबल है ना कि वो तो एग्जामिनर को भी नजर आ रहा है कितनी ओबेसिटी के अंदर फ्लूइड को देखना और वो सब करना काफी मुश्किल हो जाता है। और थैंक मैडम यू अगर मैम। हमें एब्डोमेन पे मैस नहीं मिला हम्म, लेकिन हमें पेल्विक पे मैस मिल जाता है, तो हम्म। फिर हम एब्डोमेन की जब फाइंडिंग्स बताएं तो फिर हम मैस उसमें बताएं। देखो जो तो मैथ्स आपका ऐसा है जैसे 10 वीक से ज्यादा या 12 वीक से ज्यादा आपको मिल गया बाय मैनुअल पे एंड यू हैड मिस्ड दैट मैथ्स इन द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन,
देन इट्स बेटर कि जब आप एब्डोमिनल, ये एक कॉमन सेंस की बात है कि जब आप, क्योंकि वो वाला मैस आपको फील होना चाहिए था एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जो आपने मिस कर दिया था, बट नाउ बाय मैनुअल पे आपको इतना क्लियरली फील हो गया है, तो इट इज ऑब्वियसली आपका एब्डोमिनल और बाय मैनुअल एग्जामिनेशन हर सूरत एक दूसरे से कोरिलेट करना चाहिए। तो आप उसको एब्डोमेन पे करके बोल दो और फिर साथ बाय मैनुअल का वाला बोलो। लेकिन इफ इन बाय मैनुअल एग्जामिनेशन द मास इज सो स्मॉल, मे बी 5 सेंटीमीटर, या छोटा सा आपको सबसेरोजल फाइब्रॉइड लग रहा है जो कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे आपने मिस किया, विच इज लेस देन 10 वीक्स साइज, और लैटरल यानी लैटरल फॉर्निक्स की फुलनेस है जिसमें 5 सेंटीमीटर का मास हो सकता है, जो कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में मिस करना पॉसिबल है, तो फिर आपने वो करना है। फिर आपको जरूरत नहीं बताने की, फिर आप सिर्फ बाय मैनुअल पे करोगे। सो बाय मैनुअल मैम में मैथ्स जो बड़ा हो, जो असल में एब्डोमिनल में फील होना चाहिए था, एंड यू हैड मिस्ड इट, देन यू शुड टेल इट इन द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आल्सो। जी मिसबा। मैम मैंने ये पूछना था कि क्योंकि हम सारी एग्जामिनेशन तो कर लेते हैं लेकिन हमने बताना तो बाद में होता है, बाय मैनुअल के बाद बताना जी होता है। जी तो बिल्कुल। फॉर एग्जांपल हमें एब्डोमिनल ना भी पता चले बाय मैनुअल का, हम बाद में एब्डोमिनल करके भी बता सकते हैं। एग्जैक्टली और हर दूसरी मैम चीज एक बात, दूसरे से कोरिलेट होती है ना। जी बिल्कुल। जी मिसबा। मैम एक और भी बात पूछनी थी कि मैम जब हम स्टेप वाइज बता रहे होते हैं कि ऑन इंस्पेक्शन, ऑन पाल्पेशन, ऑन परकशन, तो मैम हम परकशन मस्ट हम करें, ऑल्दो हमें मैथ्स नहीं मिला। यस, आपने कहा कि हमें एटलीस्ट हर एक एसआईटीज में के लिए करें। ना कर लेना है। यस एग्जैक्टली करने। मैम, सिर्फ ठीक है। एसआईटीज के लिए उस वक्त करें या फिर लिवर और स्प्लीन के लिए भी करें? नहीं नहीं, हाँ वो जैसे भी आपका, नहीं आई डोंट रियली थिंक सो कि आपने को परकशन विसरोमगैली देखने के लिए करनी चाहिए। विसरोमगैली के लिए परकशन तब की जाती है जब आपको वाकई में कोई लार्ज विसरा मिल जाए, जो कि हमारी इतनी डोमेन में नहीं आता। हम डीप पैल्पेशन करते हैं टू चेक फॉर द साइज ऑफ विसरास, जैसे लिवर का कर लिया या स्प्लीन का, इससे ज्यादा हम नहीं देखते। तो अगर आपको वाकई लार्ज लिवर मिल गया है बहुत ही सिग्निफिकेंट, फिर आप परकशन करके उसका मार्जिन जरूर चेक कर लेते हो, जस्ट टू से इट इज इतने सेंटीमीटर्स बिलो द कॉस्टल मार्जिन, यहाँ तक लिवर आ रहा है और इस तरीके से। लेकिन अगर लिवर इनलार्ज है ही नहीं तो आपको परकशन करने की जरूरत नहीं है फॉर विसरास। लेकिन परकशन आपने अदरवाइज मैस फ्लूइड इन द एब्डोमेन के लिए हर पेशेंट में चेक करना है। मैम मैंने क्वेश्चन पूछना है। थैंक यू। जी जी डॉक्टर फैजा। मैम मैंने आज ओपीडी में एक पेशेंट देखी थी। पेशेंट मैरिड फॉर 3 years थी, नलीपेरिस थी, with the complaint of lower abdominal pain. She has history of laparotomy 1 year back. फायजा अभी हम इस Follow केस पे फोकस कर रहे हैं जो हमारा केस है। ठीक अच्छा है, ओके मैम, फिर एंड में मैम सॉरी मेरे क्वेश्चन का जी, आंसर करिएगा मैम। क्वेश्चन कर लेंगे, आप ये पूरा केस प्रेजेंट कर लेना अगली दफा। ठीक है, ओके ओके मैम। तो आई डोंट रियली वांट टू ओवरलैप इट विद अदर क्वेश्चंस। जी ओके हेलो मैम, मुझे ये पूछना है, जैसे आपने कहा कि इसकी इनफर्टिलिटी की पहले हिस्ट्री थी, बाद में इसको मास हुआ और इसके जो भी लाइचम भी हुई। प्रॉब्लम अगर हुई जी। ऐसे पेशेंट अगर है, इसको पहले इसको एचएमबी है या मास है, फॉलोड बाय उनके बाद उसकी इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है, मकसद है कि तो फिर हम एचएमबी से शुरू करेंगे हिस्ट्री, या पहले फिर भी हम इनफर्टिलिटी से शुरू करेंगे? हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर पहले फॉर एग्जांपल ये मैरिड फॉर 7 years थी लेकिन इसको एचएमबी 10 years से चल रही है, तो यू विल स्टार्ट योर हिस्ट्री विद एचएमबी, राइट। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही बात करनी है, फिर वो बहुत ज्यादा लिंक बनेगा कि पहले से ही उसको एचएमबी स्टार्ट हुआ था एंड देन शी गॉट मैरिड एंड नाउ सिंस मैरिज, फिर उसके बाद मैरिज की हिस्ट्री आ जाएगी, और फिर सिंस मैरिज नाउ शी रिमेन्ड शी स्टिल हैड एचएमबी एंड आल्सो शी हैड सम फर्टिलिटी, और फिर उस तरीके से आपका आगे चलेगा। थैंक यू मैम। जी चलो इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं। जी सबा इन्वेस्टिगेशंस मांगे। मैडम ब्लड ग्रुप with RH factor, बी पॉजिटिव, complete blood count with date in which hemoglobin in gram per deciliter, TLC and the platelets count in cubic meter. हीमोग्लोबिन 9 है। Pre-transfusion और प्लेटलेट post नॉर्मल है। सॉरी ये पोस्ट है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन यस्टरडे की एचपी है। जी। her mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin and mean सारा डाउन corpuscular है। जी। her serum ferritin वो भी कम है काफी। जी and peripheral blood smear माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। जी। her urine complete for microscopy and biochemistry. In microscopy नॉर्मल। her viral markers hepatitis B surface antigen and नेगेटिव। anti
a COVID PCR, and नेगेटिव, her random blood sugar, 92, जी, her serum FSH and LH level, नॉर्मल है वो, serum prolactin and नॉर्मल, thyroid. Her thyroid function test in which T3, T4 and TSH. वो भी नॉर्मल है, Her husband semen analysis report. चले वो भी आपको दिखा दी, वो भी नॉर्मल है, Her tubal patency. वो भी बायलैटरल ओके है, नॉर्मल है, जी. And her pelvic ultrasound for the size of uterus, endometrial thickness, endomyometrial ectotexture, and any adnexal pathology. चलो वी विल डिस्कस इट। जी. जी मैडम बस ठीक है, और किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन मांगनी हो या कुछ और? आईफिल स्मेयर मैडम इनको मांगना चाहिए, सीरम मांगा फेरिटिन था, मांगना चाहिए था। मांग लिया, वो आपने मिस कर दिया, उन्होंने मांगा, सीरम फेरिटिन मांगा। अच्छा मैम, अगर एग्जामिनर हमें ना बताए डेट के जी ये पोस्ट ट्रांसफ्यूजन है कि प्री ट्रांसफ्यूजन है, तो फिर हम पेशेंट से पूछ के बैठे कि आपको ब्लड किस डेट पे लगा था, उस हिसाब से फिर हम आइडिया लगा ले। आखिरी ब्लड कब लगा था, ये तो वैसे ही आपने हर एक में पूछना है, क्या पता सुबह ही बेचारी लगवा के आई हो, तो आपने ये तो पूछना ही है कि आखिरी ब्लड कब लगा था, तो अंदाजा हो जाएगा। फिर आप एचबी की डेट पूछोगे साथ, तो आपको विल गेट टू नो कि ये क्या है। जी, वरना ब्लड ट्रांसफ्यूजन नोट्स भी मांग सकते हो इन्वेस्टिगेशंस में। ठीक है, और कुछ? मेरा ख्याल है ठीक है, काफी है। अच्छा मैडम, अब एनेस्थीसिया इन्वेस्टिगेशन आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड। नहीं, वो अभी ना बात करो ना, उसकी बात ना करो, पता नहीं चल अल्ट्रासाउंड पे कुछ भी ना है। ठीक है, सो आई थिंक गुड। और कोई इन्वेस्टिगेशन किसी ने मांगनी है? मैडम पैप्समियर, वेरी गुड, बिल्कुल, मैं तो खुद इस चीज का इंतजार कर रही थी। गुड जुनैरा, पैप्समियर की रिपोर्ट तो मांगे ना, आपके एचएमबी का पेशेंट है, ब्लीडिंग की पेशेंट है, ठीक है ना? जी. गुड, यही मैं इंतजार में थी। ठीक है, ओके, तो हो गई आपकी इन्वेस्टिगेशंस। किसी ने एंट्रल फॉलिकुलर काउंट लिखा है, एएमएच अभी नहीं मांगना है इस पेशेंट में, यू डोंट नीड टू। देखो, एक तो अल्ट्रासाउंड पे कुछ ना कुछ बात हो भी सकती है इसके अंदर, बाकी हर पेशेंट में हम एएमएच नहीं कराते। क्यों कराएंगे हम 32 इयर्स ओल्ड में? लुक एट द प्राइस ऑफ एएमएच। एएमएच तो इतना मुश्किल लैब वाले करते हैं, बल्कि कई जो मेजॉरिटी लैब्स हैं उन्होंने तो दिन रखे हुए हैं कि हम थर्सडे और सैटरडे को सिर्फ रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो पूरा हफ्ता सैंपल्स इकट्ठे करते हैं और सिर्फ थर्सडे और सैटरडे को करते हैं। कोई 4 दिन बाद, 2 दिन बाद उसकी रिपोर्ट देते हैं। इट कॉस्ट अ लॉट अननेसेसरीली। 32 इयर्स में आप एएमएच क्यों करा रहे हो? क्या वो एमेनोरिक है, या क्या उसमें आप मेनोपॉज एक्सपेक्ट कर रहे हो? व्हाई आर यू गेटिंग एएमएच? नॉट एट ऑल। ठीक है, अच्छा चलो, अब अपना डीडी बता दो सबा, व्हाट इज योर डिफरेंशियल? Madam, my first differential based on history examination available investigation. My first differential diagnosis is primary subfertility due to fibroid uterus, and my second differential is because my patient has a complaint of heavy menstrual bleeding for the last 3 years, and my second differential is ovarian mass, as I have felt a mass in the pelvis, and there is a fullness in the left fornix. अच्छा देखो, डीडी बताने का ना आपका तरीका नहीं ठीक। आपको कहना चाहिए, हाउ कैन यू से दैट शी इज हैविंग प्राइमरी सबफर्टिलिटी ड्यू टू मैस? क्या पता एचएमबी तो वो मैस कर रहा है। बात आपके सेंटेंस का मतलब ये है कि जब आप उसका मैस ट्रीट कर दोगे तो उसकी सबफर्टिलिटी ट्रीट हो जाएगी, वो जाके No, नेचुरली madam. कंसीव करेगी। या फिर ये कि नॉट नेचुरली, तो जो भी एआरटी आप उस पर अप्लाई करोगे वो जरूर कामयाबी होनी है उसके ऊपर, बिकॉज आपने कॉज हटा दी फर्टिलिटी। May and may not be. तो वाई यू That सेइंग kind of thing. डीडी अपना ठीक बोलो। आप ये नहीं कह सकते कि प्राइमरी सबफर्टिलिटी ड्यू टू दिस। ठीक है, ये तो प्राइमरी सबफर्टिलिटी तो है, आपने इस वक्त उसकी मेन चीज बोलनी है।
या तो कोई भी चीज ना होती तो आप कह सकते थे कि शी इज अ केस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी, या शी इज केस ऑफ मेल फर्टिलिटी, या शी इज अ केस ऑफ दैट। इसके अंदर HMB है, प्राइमरी फर्टिलिटी। तो एक तरफ आप कहोगे कि बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग एंड मास दैट आई फेल्ट ड्यूरिंग माय एग्जामिनेशन व्हिच सीम्स टू बी अराइजिंग फ्रॉम यूट्रस, तो इट्स अ यूट्राइन मास, नंबर 1 फाइब्रॉइड यूट्रस। बाकी जो भी आपने बताने, मे बी सबमिकोजल हो, मे बी इट इज, बट एज इट्स मोर टुवर्ड्स द लैटरल साइड और आपको एक डेविएटेड पूरा मिला तो सीम्स लाइक इट्स अ फाइब्रॉइड यूट्रस व्हिच इज मोर इंट्राम्यूरल या सबसिरोजल। लेकिन जिस तरह की इरेगुलर ब्लीडिंग है, कैन बी सबम्यूकोजल, एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी हो सकती है या सर्वाइकल पैथोलॉजी, ब्लीडिंग से रिलेटेड यूट्राइन या सर्वाइकल होगी। ओवेरियन, इधर ओवेरियन कह रहे हो, ओवेरियन क्यों? फुलनेस तो आपने उधर कहा है कि इट सीम्स टू बी इनसेपरेबल फ्रॉम द यूट्रस, तो अब पहले आपका नंबर 2 ओवेरियन डीडी तो आपका नंबर 5 होना चाहिए, क्योंकि जो ब्लीडिंग के साथ ओवेरियन मास नेवर प्रेजेंट्स विद ब्लीडिंग, ठीक है ना। तो आपने आपके डीडी में सबसे पहले यूट्राइन या सर्वाइकल कॉसेस आएंगी, फिर आखिर में ओवेरियन कॉज आएगी। कि हो सकता है ओवेरियन हो, which doesn't really seem to be there because आपने शुरू में क्लियर हमें कर दिया कि it's inseparable from the uterus and she is got bleeding, ठीक है ना। सो आपने कहना है नंबर 1 तो फाइब्रॉइड यूट्रस है, बड़ा क्लियर उसमें। नंबर 2 मे बी सबम्यूकोजल पैथोलॉजी, एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी, बिनाइन और मलिग्नेंट। फिर नंबर 3 में मे बी सर्वाइकल कॉज बिकॉज यू डोंट हैव द पैप स्मेयर, और फिर एंड पे आपने वो करना है। यस, समबडी सेइंग एडिनोमायोसिस, एडिनोमायोसिस का भी हो सकता है, बट जिस तरह की इरेगुलर ब्लीडिंग है, and then she did not mention के according to her it was non-tender examination, uterus was firm, mass was firm, so adenomyosis नहीं आता इसके अंदर, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ तो उसके फेवर में भी चली जाती ना बात। और मतलब अगर आप बोलते हो हर इस तरह के पेशेंट में कि नंबर 1 फाइब्रॉइड, नंबर 2 एडिनोमायोसिस, तो एग्जामिनर आपसे रीजंस पूछता है इन फेवर ऑफ योर डायग्नोसिस। जैसे नंबर 1 फाइब्रॉइड के तो सारे रीजंस आपने बोल दिए, एडिनोमायोसिस के फेवर में बोलने के लिए एक भी रीजन नहीं है आपके पास। शी इज नॉट लाइक मल्टीपैरस, शी इज नॉट अबव 40, शी इज नॉट having any tenderness, she's not having any pain in lower abdomen during periods, and she's not even tender on examination। तो आप बोलोगे क्या कि बस ऐसे बोल दिया एडिनोमायोसिस? नहीं, दिस कैनॉट बी द कॉज। सो जब भी दीदी बोलो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर सबा ने नंबर 1 बोला फाइब्रॉइड यूट्रस, तो चलो उसके फेवर में तो बातें बोल दी, फिर नंबर 2 उसने बोल दिया ओवेरियन, तो ओवेरियन के फेवर में कुछ बोल नहीं सकती। तो जब भी DD 1 2 3 बोलो तो उसके फेवर में बोलने के लिए कुछ हो कि इसलिए ये मेरा नंबर 1 DD है, ये मेरा नंबर 2 DD है, मेरा नंबर 3 और मेरा लास्ट DD ओवेरियन, राइट। मैडम अगर सर्वाइकल सर्विक्स हमें मतलब नॉर्मल लुकिंग है, कोई डिस्चार्ज नहीं है, उस टाइम पेशेंट ब्लीड भी नहीं कर रही और हमें कोई लियन भी नहीं मिल रहा, तो हम सर्वाइकल पैथोलॉजी सेकंड DD में रख सकते हैं उसको? हम कैसे तो फिर पैप स्मेयर भी नहीं लेते? देखो, पैप स्मेयर का तो मतलब ही ये है कि हमने सिर्फ ग्रॉस लुक पे नहीं जाना। आई एम नॉट सेइंग सेकंड DD, मेरा सेकंड DD, मैंने ये नहीं कहा कि फाइब्रॉइड यूट्रस के बाद सेकंड DD सर्वाइकल कॉज है। मैंने कहा है नंबर 1 फाइब्रॉइड, नंबर 2 एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी, मे बी सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड, मे बी बिनाइन और मैलिग्नेंट लेजन यानी कि हाइपरप्लेजिया या मैलिग्नेंट कॉज ऑफ एंडोमेट्रियम। नंबर 3 इज द सर्वाइकल कॉज एंड नंबर 4 इज ओवेरियन कॉज। ओके, आपका अब ये देखो, इतनी अच्छा हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद जब आपने ये जो 2 DD बोले हैं ना, उसके बाद फ्रैंकली पास होने की गुंजाइश ही नहीं बची। जब आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पहली लाइन बोली प्राइमरी सबफर्टिलिटी ड्यू टू फाइब्रॉइड यूट्रस या ड्यू टू मास इन द यूट्रस, इसका तो मतलब यही हो गया। देखो, जब आप अपने नॉर्मल इसमें अगर क्लिनिक पे बैठे हो और आप मरीज को बता रहे हो कि मेरे ख्याल से पेशेंट को मसला ये है कि उसको यूट्रस में मास है जिसकी वजह से प्राइमरी सबफर्टिलिटी है, and then you later on take patient to theater and you treat that mass, लेकिन 6 महीने गुजर गए, वो पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो गलत बयानी होगी, उनका तो नाराज होना बनता था, ठीक है ना। सो आप ये नहीं कह सकते कि इट्स प्राइमरी सबफर्टिलिटी ड्यू टू दिस। यस, शी इज हैविंग मास जिसकी वजह से ब्लीडिंग है पॉसिबली, हाउएवर उसके साथ साथ प्राइमरी सबफर्टिलिटी को ट्रीट किया जाएगा, राइट। सो अब आपने जो DD 1 2 3 4 बोलना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ब्लीडिंग वाले मरीज में फ़ौरन से ओवेरियन कॉज, जो कितना अच्छा आप हमें एग्जामिनेशन में आपने क्लियर किया पूरा, मतलब ऐसे मरीज मेरे ना सामने आ गया, आपने इतना अच्छा एग्जामिनेशन बताया हमें कि इसका इस तरह से इट वाज मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एक्सेट्रा बट इनसेपरेबल फ्रॉम द यूट्रस और वो सारा। तो
फिर ओवेरियन कॉज कहाँ से आ गई एकदम से, ठीक है ना। तो ओवेरियन कॉज नंबर चौथी या पांचवें डीडीज में बनता है, ठीक है। और जहां तक रहा सर्वाइकल क्यों बोलेंगे, अगर सर्विक्स बिल्कुल नॉर्मल लुकिंग है तो सर्वाइकल हमने को तीसरा चौथा ही डीडी बनाया है, वो भी इसलिए कि हमें पता है कि ब्लीडिंग कैन बी द, मतलब एक जो फेवर में बात जा रही है वो इरेगुलर ब्लीडिंग है, तो इस वजह से सर्वाइकल कॉज बोलिए। जिस तरह मैंने कहा है कि अपने मैडम आप तैयारी कर रहे होते हैं ना एग्जाम की, तो 3-4 लोग जो आपस में होते हो वो जरूर डिस्कस किया करो हर केस की डीडी, उसके प्रो पॉजिटिव और नेगेटिव बातें, कि क्या पॉजिटिव बातें जा रही हैं इस डीडी की तरफ और क्या नेगेटिव जा रही हैं। और नंबर 1 इसलिए ये, नंबर 2 आहिस्ता आहिस्ता नंबर 3 तक जाते जाते पॉजिटिव बातें इन फेवर ऑफ द डीडी कम होना शुरू हो जाती है और नेगेटिव बातें ज्यादा, इसलिए तो वो नंबर 3 और नंबर 4 पे है वो डीडी, ठीक है ना। तो इस मैडम तरीके पोलैप से कैसे थे? मैम मैम फिर इसकी इनफर्टिलिटी की कॉज को कहाँ एड्रेस करेंगी? अगर पेशेंट की इनफर्टिलिटी 7 ईयर्स है और 4 ईयर्स को एचएमबी है, तो मतलब 3 ईयर्स बिफोर विच एचएमबी। मे पॉसिबली, विच आपने ये नहीं कह देना कि है ही इस वजह से, आपने कहना है विच मे पॉसिबली बी बिकॉज ऑफ द फाइब्रोइड यूट्रस, मैम ठीक है ना। मैम फिर उसकी पहले 3 साल को हम कहाँ जस्टिफाई करेंगे? जब 3 साल 7 ईयर्स से इनफर्टिलिटी है और 4 ईयर्स से एचएमबी है, तो मतलब पहले 3 साल तो एचएमबी नहीं थी। तो कहाँ डॉक्यूमेंटेड है कि उसको फाइब्रोइड कब से और कब से नहीं है, ठीक है ना। मतलब ऐसा तो कुछ मतलब ये कोई इतना गायनी में कैन नॉट बी दैट कैलकुलेटेड। यस यू आर राइट, मे बी 3 साल, इट मे बी इवन बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड फर्टिलिटी इन द फर्स्ट 3 years, कि फाइब्रोइड बाद में डेवलप हुआ है या बाद में इंक्रीज हुआ इतने साइज में, हो सकता है बिल्कुल। और लेकिन ये बात हार्ड एंड फास्ट तो है ही नहीं ना। अगर उस वो हिस्ट्री हमें दे रही है 4 साल से ब्लीडिंग की और मैरिड फॉर 7 years है, तो 4 साल से तो ब्लीडिंग है, बट यू नेवर नो कि उसका एक साइलेंट फाइब्रोइड हो जो कि ट्यूब ब्लॉक कर रहा हो। मैडम कोएग्जिस्टेंट पोलैप भी तो हो सकता है। वही बिनाइन ऑब्लिक मैलिग्नेंट बिल्कुल बात की है, वो एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी बिनाइन ऑब्लिक मैलिग्नेंट, तो उसमें पॉलिप कवर हो जाता है बिल्कुल। मैम इसका ऐसे भी तो हो सकता है, पहले एसिम्प्टोमेटिक फाइब्राइड था, अब सिम्प्टोमेटिक फाइब्राइड है, पहले कोई जी एक बिल्कुल, छोटा मोटा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे ही है इसके बिल्कुल। 3-4 साल पहले ये से गुजर गए, बाद में जब बिल्कुल सिम्प्टोमेटिक हुआ बिल्कुल तो पता चला। बिल्कुल, या जैसे डॉक्टर जुनैरा ने कहा है कि इसमें पॉलिप हो सकता है फाइब्रोइड चल रहा, अब पॉलिप डेवलप हुआ है तो पॉलिप ने ब्लीड करना शुरू कर दिया, स्पेशली जो इरेगुलर ब्लीडिंग है। मैडम ठीक है पहले बिल्कुल। फाइब्रॉइड पोलैप हाइपरप्लेजिया और एंड में ओवेरियन, इसका कह सकते हैं ना। हाँ फाइब्रोइड इसलिए इरेगुलर ब्लीडिंग है, आप सही कह रहे हो कि इसमें पॉलिप क्यों नहीं नंबर 1 पे आया। फाइब्रोइड इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन पे कितना बड़ा सा मैस फील हो गया ना, अगर वो ना फील हुआ होता तो फिर एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी हमारी पहले हो जाती। अगर इसका एक रेगुलर सा कंटूर होता लेकिन फर्म कंसिस्टेंसी होती तो फिर हम एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी पहले ले आते, फाइब्रोइड फॉरन से ना पहले लाते। बट इसके एग्जामिनेशन में इतना सही किस्म का मैस फील हो गया यूट्रस से आता हुआ, इस वजह से हमारा फाइब्रोइड नंबर 1 हो गया, ठीक है। नो वी डू नॉट नीड टू आस्क फॉर प्रीवियस स्कैन्स, हमारे लिए इस वक्त वाला स्कैन मैटर करता है, हमने उसको ट्रीट करना है। प्रीवियस स्कैन में अगर उसका कभी फाइब्रोइड था या नहीं था वो हमारी मैनेजमेंट प्लान को डिफर नहीं कर रहा, तो प्रीवियस स्कैन के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है, ना सिर्फ कि इस वक्त बल्कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, कि ऐसा ना हो कि मरीज बेचारी आई हुई है कोई दूर से पेशावर से, प्रीवियस स्कैन वो पेशावर छोड़ा या आपने उसे कह दिया मुझे प्रीवियस स्कैन दिखा दो, वो बेचारी व्हाट्सएप पे मंगाती फिर, या आपने करना क्या उन प्रीवियस स्कैन को देखे, आपको तो प्रेजेंट स्कैन को ट्रीट करना है। ये कोई सीरियल ग्रोथ स्कैन्स तो है नहीं फीटस के जो आपको के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यू डोंट नीड टू आस्क फॉर प्रीवियस, इस चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं होती। चलो ठीक है, नाउ लेट्स मैनेज द पेशेंट। जी सबा। जी मैडम, before managing my patient, I want to complete my missing investigations. I need her pelvic ultrasound for the size of the वो uterus. आप हमें खुद ही बता दो जो आपके पेशेंट का था। जी मैडम, on ultrasound bulky uterus with the 6 into 5 centimeter heterogeneous area in the myometrium, most probably fibroid, which was distorting the cavity, and bilateral adnexa was clear. ठीक है, चलो यही स्कैन है, अब मैनेज करो। जी, first of all, I will counsel my patient that she has a fibroid uterus, which may or may not is the cause of her infertility. It is a benign uterine pathology.
But the it is a benign uterine pathology, but the final diagnosis will be on the histopathology report. I will counsel the patient about the I will counsel her about the persistence of a complaint even after surgery, risks of the surgery, and recurrence of fibroid even after surgery in the next 5 years. And as my patient, my aim is to improve her quality of life as she has a hemoglobin of 9 gram per deciliter. I will give her options of laparoscopy myomectomy versus abdominal myomectomy. As the facilities of laparoscopy myomectomy is not available in my setup, so I will do her abdominal myomectomy. But before that, I will correct her anemia. I will correct her anemia by transfusing 1 unit of blood to make her by transfusing 2 units of blood to make her hemoglobin 11 gram per deciliter. And I will prepare her. I will take the anesthesia. I will involve the multidisciplinary team involving the anesthetist and me as a gynecologist. And my aim is to do her total. My aim is to do her abdominal myomectomy and checking her tubal patency after myomectomy. I will, after pre-anesthetic evaluation, I will prepare the and pre-operative preparation. I will prepare the patient for चलो गुड, surgery. अभी मायोमेक्टमी Before डिस्कस surgery. करते हैं। मुझे कोई और बताए इसकी प्रेपरेशन पेशेंट की। गुड, यू वर गुड, अदरवाइज अच्छा था, ठीक था। सर्जरी हम अभी डिस्कस करते हैं। कोई और अटेम्प्ट करना चाहेगा इसको? अच्छा बोला वैसे सबा ने भी। यही पेशेंट है First of all, I would like to. जी जुनैरा। Madam, I will do it. Madam, first of all, I would like to complete my basic investigation. उससे मुझे अल्ट्रासाउंड जो उन्होंने ये बताया है, उसके बाद I will counsel my patient regarding the diagnosis that she is having the fibroid uterus that may or may not be the cause of her infertility. If the patient conceives in the near future, that will be proof that it was the cause of that fibroid, otherwise not. And then I will address all the risk factors of my patient since her hemoglobin is low, 9 gram per deciliter. So I will transfuse 1 unit of blood and keeping 1 unit cross mass. I will prepare my patient for the surgery, and I will take the pre-op anesthesia fitness. I will prepare my patient, and I will make her NPO from 12 midnight. Then I will. ठीक है, चलो अभी सर्जरी डिस्कस करते हैं। आईवी आयरन के बारे में क्या ख्याल है? कोई कुछ कहेगा? मैम एक्सक्यूज मी मैम, इसकी जो है ना 22 अक्टूबर इसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है। वी आर प्लानिंग हर सर्जरी बिफोर द नेक्स्ट कमिंग साइकिल। तो 4 ब्लड लग गए, तो वी कैन डू मतलब पेशेंट को हम कैलकुलेट डोज से आईवी आयरन देके और उसकी हेमोग्लोबिन 11 कर सकते हैं, क्योंकि अभी दिन है उसके नेक्स्ट साइकिल में। थोड़ी इरेगुलर ब्लीडिंग की भी हिस्ट्री है पेशेंट की, रेगुलर हैवी ब्लीडिंग की नहीं है। Madam, for the last 6 months, she has irregular. We cannot rely on that. गुड आंसर अच्छा था तहजीब का। मैं यही बात बताना चाह रही थी, अगर तो उसकी रेगुलर हिस्ट्री होती, रेगुलर HMB की, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो फिर हम पहले ये देखते हैं कि डिपेंड्स ऑन द टाइम व्हेन वी आर सपोज्ड टू डू द सर्जरी। कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 22 अक्टूबर इसकी LMP है, तो नेक्स्ट साइकिल तक हमारे पास अगर हम टाइम बाय कर सकते हैं तो हम इसको फिर बिकॉज 4 ब्लड पहले ही लग चुके हैं पेशेंट को, तो ब्लड बड़ी सोच समझ के लगाना चाहिए। तो हम IV आयरन दें, 2 हफ्ते के बाद हम इसका सर्जरी प्लान करें, और मीनवाइल हम IV आयरन दें और ओरल आयरन पे करके 11 तब तक हो जाएगी, चाहे तब 1 या 2 ब्लड इन हैंड रख के वी कैन प्रोसीड। और दूसरी चीज़ ये है कि बट दिस पेशेंट इज़ हैविंग इरेगुलर ब्लीडिंग, और अनफॉर्चुनेटली इस तरह का पेशेंट हार्मोनल थेरेपी को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। सो हम हिट एंड ट्रायल का टाइम नहीं है, क्योंकि शी इज़ ऑलरेडी गिवन 4 यूनिट्स ऑफ ब्लड। ऐसा ना हो कि हम हिट एंड ट्रायल में इतना इसका और ब्लड लॉस कर दें कि वो 4 दिए हुए ब्लड भी पूरे हो जाए, मतलब वेस्ट हो जाए, 9 से उल्टा HB80 हो जाए 1 हफ्ते के बाद IV आयरन के चक्कर में। तो आप लेकिन अगेन सब 2 ब्लड लगाना 4 के ऊपर वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। आप उसके ऊपर 1 ब्लड लगा के 2 इन हैंड रख सकते हो। इवन 9 HP पे भी 2 इन हैंड रख के सर्जरी की जा सकती है,
क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़्यादा अभी, बिकॉज 4 काफ़ी होते हैं पेशेंट को लग जाने। तो 9 HB कोई इतनी बुरी HB वैसे होती नहीं है, आप 9, लेकिन ऑब्वियसली एग्जाम में अगर आप ज़्यादा सेफ रहना चाह रहे हो तो आप 1 ब्लड और लगाओ और 1 इन हैंड रखो या 2 इन हैंड रखो। सॉरी, एंड यू कैन मैडम वो ऑलवेज। कहते हैं मायोमेक्टमी के लिए 11 HB होनी चाहिए। नहीं, कहाँ कहते हैं अब, इतने तो आप लोग रोज इतनी मायोमेक्टमीज करते हो अपने हॉस्पिटल्स में। क्या 10.5 या 10 HB वाले को पहले एक ब्लड लगाते हो, फिर 11 करके उसको थिएटर लेके जाते हो? नहीं तो 10 इज वेरी गुड HB फॉर मायोमेक्टमी, ठीक है ना, कोई नहीं कहता, बिल्कुल भी नहीं। 9 से आप एक चलो ब्लड लगा के उसको 2 इन हैंड रखो और ले जाओ। 10 पे कोई भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं करता। 10 या 10.5 को पहले एक ब्लड लगता है क्या, और फिर मायोमेक्टमी होती है? बिल्कुल भी नहीं, आप लोग किसी के हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। डॉक्टर उबा से क्वेश्चन करना है, जिसका ये मैंने जितना भी होते हैं सुना है कि जिसका हिस्टेक्टमी करनी है उससे पहले एंडोमेट्रियल बायोप्सी हम करेंगे, जो मायोमेक्टमी होती है उससे पहले आप एंडोमेट्रियल बायोप्सी नहीं करते, ऐसा ही है? नहीं देखो, इस पेशेंट में इट्स नॉट लाइक दिस जुनैरा। अगर यही पेशेंट होती 45 प्लस की विद द सेम कंप्लेंट्स, इफ इवन इफ शी हैड अ फाइब्रॉइड, आई वुड हैव डन हर डायग्नोस्टिक ये बायोप्सी एंडोमेट्रियल क्यूरेटिंग की। बेशक इसका फाइब्रॉइड भी आता है, क्योंकि फाइब्रॉइड एंड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एक्चुअली शेयर द सेम रिस्क फैक्टर्स। सो लेकिन ये पेशेंट यंग है, 32 ईयर में, वी डोंट नीड टू डू दिस एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग, ठीक है ना। मैडम इसका मतलब है कि अगर एज ज्यादा होती है 45 प्लस होती है या 40 प्लस होती है तो ये और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती, यस, सो तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द लिपेल और मे बी यस, और endometrial sampling due to irregular bleeding, and then you will proceed with the myomectomy। obviously उसमें तो फिर hysterectomy का भी आ जाती है ऑप्शन, तो इस तरह करते हैं, ठीक है। और जब जैसे बाकी सारा कुछ तो बहुत अच्छा बोला उसने। देखो, काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट में आप ये अब इतना ना उसके पीछे पड़ो कि फाइब्रॉइड वाज द कॉज और नॉट। आप ये कहोगे कि उसकी ब्लीडिंग की कॉज तो ये थी। सबा ने कुछ स्टेटमेंट्स बोली, इतना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स ना दो कि पहली लाइन में ही कि आई विल काउंसल, वी डू नेवर डू दिस, यू नेवर डू दिस इन योर ओपीडी और इन योर वार्ड। जब आप पेशेंट को सर्जरी के लिए लेके जाते हो, ऑलवेज डू एंड से दोस थिंग्स इन एग्जाम जो कि वार्ड में होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके वार्ड में 10 HP पे ब्लड नहीं लगता, इसी तरीके से आपने वहां पर वही चीज करनी है जो आपके वार्ड में हो रही है, वो बिल्कुल ठीक हो रही है। आप अपने वार्ड में जब पेशेंट को मायोमेक्टमी, प्राइमरी सब फर्टिलिटी विद फाइब्रॉइड वाले पेशेंट को जब आप मायोमेक्टमी के लिए लेके जाते हो, तो आप रिकरेंस ऑफ फाइब्रॉइड की बातें नहीं करते उसके साथ इतनी। क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी तो आपको इंट्राऑपरेटिव फाइंडिंग्स ही नहीं पता। रिकरेंस की बातें तो की जाती हैं सर्जरी के बाद। आप उससे अभी से ही कह रहे हो कि 5%, 5 सालों में इसका रिकरेंस भी होगा। persistence of symptoms after surgery की बातें आप कर रहे हो। This is not only controversial statement in exam, but it is very discouraging and controversial statements for the patient. आप उसको, because you know that fibroid, yes, fibroid which is indenting the endometrial cavity is the cause of her irregular bleeding, and you are doing the surgery because it is going to treat her symptoms. Yes, fertility, and this surgery is going to benefit her in her fertility. Treatment का पता नहीं, लेकिन this surgery has to be done if she is planning to conceive. अगर bleeding ना भी होती, but there was this big fibroid which was indenting the cavity and she had fertility problem, so this fibroid should have been removed before we go ahead with any of the reproductive techniques, right? So आप उसको कोई positive और encouraging बातें करोगे ना, आप उसको यही बात करोगे कि I will counsel the couple that the cause of her bleeding is fibroid uterus, seems to be fibroid uterus, which will be treated with surgery. However, the surgery is going to benefit her fertility problem as well. And surgery, my aim of surgery will be to treat fibroid plus to check her for the fertility, or to make all the visceras or all the reproductive organs best for her fertility. ठीक है ना, यानी कि उसके ट्यूब्स को भी आप बेस्ट तरह से देखो, जितना बेस्ट आप कर सकते हो फॉर फर्टिलिटी, आपकी सर्जरी का मकसद ही है, ठीक है। इस दौरान में ये अब परसिस्टेंस ऑफ सिम्टम, एक मरीज को आप इतनी बड़ी सर्जरी के लिए लेके जा रहे हो, उससे परसिस्टेंस ऑफ सिम्टम्स की बातें कर रहे हो, रिकरेंस की बातें कर रहे हो, अभी इंट्राऑपरेटिव फाइंडिंग देखी भी नहीं है, क्योंकि देयर इज डिफरेंट रिकरेंस डॉक्यूमेंटेड फॉर द मल्टीपल फाइब्रॉइड्स एंड फॉर अ सिंगल फाइब्रॉइड।
और आपको नहीं पता, वो इंट्राऑपरेटिवली यू डोंट नो कि असल मसला क्या है, क्या पता फाइब्रॉइड हुई ना, क्या पता कोई वही जैसे ज़ुनैरा ने कहा क्या पता है सब म्यूकोजल कोई बड़ा सा पॉलिप हो, फाइब्रॉइड हुई ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बातें तो आपने कुछ और ही करनी सर्जरी से पहले। तो इवन मतलब ये रिकरेंस की जो या तो फिर आप परसेंटेज बोलो रिकरेंस की, तो खुद से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जो है ना वो करो, स्ट्रेट बात करो, जो कि आपको भी पता है और हमेशा आप यही बात करते हो कि हम फाइब्रॉइड कर रहे हैं, दिस सीम्स टू ट्रीट द कॉज ऑफ हर ब्लीडिंग। तो आफ्टर या तो ये डेंटिंग द कैविटी ना होता, बिल्कुल सबसिरोजल होता, तो फिर हम कहते हैं कि ये रिमूव तो करेंगे फॉर फर्टिलिटी इश्यूज, बट दिस मे नॉट बी द कॉज ऑफ हर ब्लीडिंग, and later on she may need hormonal treatment for her bleeding because it is not indenting the cavity। ठीक है ना। बट अब एक फाइब्रॉइड इतना अच्छा आपको नजर आ रहा है जो कैविटी भी इंडेंट कर रहा है, तो और क्या फिर वजह रहेगी ब्लीडिंग की। मैडम अगर सब सिरोजल फाइब्रॉइड होता इस पेशेंट का, तो फिर क्या हम उसको रिमूव करते, जबकि वो कैविटी को भी ना इंडेंट कर रहा होता। इट डिपेंड्स। देखो 7 years मैरिड फॉर हो गए, सब फर्टिलिटी का हो गया, और अब इसको ब्लीडिंग है, आप कह सकते हो कि मैं इसे हार्मोनल ट्रायल दे सकती हूँ, बट आप इसका ट्यूबल पेटेंसी प्लस प्रोसीड करके फाइब्रॉइड रिमूव कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ फर्टिलिटी, टेलिंग द पेशेंट दैट दिस फाइब्रॉइड मे नॉट बी द कॉज ऑफ ब्लीडिंग बिकॉज इट्स नॉट एक्चुअली इन्वॉल्विंग द एंडोमेट्रियम ऑन स्कैन। लेकिन कई दफा इस तरह का फाइब्रॉइड जो इतना बड़ा हो, बेशक सबसिरोजल आए, it is at times intramural as well, and once a fibroid is intramural then it can be the cause of a bleeding। ठीक है, चलो अब सर्जरी डिस्कस करते 10 HP करके, और जो है हम सर्जरी इसी मंथ में कर देंगे क्योंकि रेगुलर साइकिल है, हैं। नेक्स्ट मंथ जी में नहीं बिल्कुल करेंगे। करेक्ट, बिल्कुल। अगर मैम रेगुलर साइकिल होती तो फिर हम इसको वेनोफर दे We देते, could have, yes, then वो नेक्स्ट में no करते। need to transfuse more blood, and as I said, देखो 4 ब्लड बहुत होते हैं एक्चुअली। और मैम सर्जरी हमें आइडियली कौन से मेंस्ट्रुअल फेज में करनी चाहिए? इस तरह के पेशेंट में तो यू शुड नॉट वेट कि आप कोई मेंस्ट्रुअल फेज का वेट करो। जैसे कि अगर इसकी एचपी ठीक होती तो आप राइट आफ्टर जब भी इसे प्रेजेंट किया उसके बाद आप कर सकते हो। अदरवाइज आइडियली तो जाहिर है पीरियड्स के फौरन बाद होता है, लेकिन इसमें तो हमने बस पीरियड से पहले करनी है। थैंक यू मैम। वेलकम जी। मैडम सब मैंने वो डिस्क्राइब ब्लड कर इसलिए लगाए, जी सर। 4 ब्लड तो इसको लगे थे, तो अब उसकी एचबी जो थी वो 11 हो चुकी थी। चलो लेकिन ठीक है, आपने उसकी 9 तो हो गई थी, एचबी दी, तो मैंने इसलिए इसलिए तो 9 रखी ताकि इस पे जी डिस्कस कर आपने लें कि 9 दी नीमिया थी कैसे करेक्ट करना है। ठीक है, जी चलो अब सर्जरी बताओ। थिएटर में जी चली गई है, पेशेंट अंडर हो गई है। जी। Then I will as I after aseptic Meyer, I will give the finasteride incision and will approach the uterus by approach the uterus and will see the I will see the most. I will check the adnexa, and then I will find the most prominent part of the uterus, and will give the longitudinal incision on the most prominent part, mostly from the interior surface of the uterus, and then will remove the fibroid by enucleating the by separating the fibroid from its capsule by blunt dissection, and then I will remove it by myoma secrue, and then will close the ठीक dead है, space by vicryl, and अच्छा will जी, check the tubal potency. कब चेक करोगे? Madam, after when we I will remove the fibroid, and after securing the hemostasis. तो आपने डाई डाली नीचे से ट्यूबल पेटेंसी देखने के लिए, वो सारी डाई आई आपके स्टिचेस के अंदर से, 4 स्टिचेस अंदर से खुल गए, ब्लीडिंग भी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई, पता नहीं लगा कि डाई स्टिचेस में से आई है या ट्यूब्स में से। ठीक है, ऐसे नहीं करना। देखो जब मैडम पहले करनी है, 2-3 चीजें, अब इन बातों से पहले बिल्कुल ही करनी है अच्छा ना नहीं मैम, होता है। मैम मुझे नहीं पहले पता, करनी है ना बताती हूँ, खैर मैं बताती हूँ है क्या, मैं बताती हूँ। जब मैंने कहा पेशेंट अंडर हो गई, आपको बताना चाहिए कि आई विल ओके पेन रेट भी चेक कर दो, आई विल डू हर ईयूए। डायरेक्ट इंसिजन पे क्यों आ गए हो? ईयूए हमने क्यों करना है? ईयूए हमने करना है ताकि हम इंसिजन डिसाइड करें कि हमने मिड लाइन देना है या हमने ट्रांसफर्स देना है या क्या देना है, देन यू विल से दैट आई विल डू ईयूए।
will reconfirm the findings. And as it's a very mobile mass and not much large mass, I would prefer lower transverse incision, right? This is actually what we all do as well. हमें कोई ख्वाब नहीं आया होता कि हमने हर मरीज में ट्रांसवर्स इंसिजन देना है, या कोई ख्वाब नहीं आता कि वर्टिकल किस में देना है, मिड लाइन। उसका एक कोई अगर यही एडिशंस वाला बड़ा मैस हो तो उसमें मिड लाइन प्रेफर किया जाता है बस, but it's not that big and it's a mobile mass, then I would like to give her the lower transverse incision. And after giving the incision, opening the peritoneal cavity, I would like to see all the visceras, adnexa, and number one mass. Describe the mass, its location, its size, its relationship with the tubes. क्या पता आधा ट्यूब के ऊपर चढ़ा हो, क्या पता ये ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड हो, यू नेवर नो। आपने जिस तरह डिस्क्राइब किया एग्जामिनेशन बाय मैनुअल, उसमें बहुत ज़्यादा लगा कि ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड है, क्योंकि सर्विक्स ऐसे ही नहीं एक तरफ डेविएट हो गई थी, ठीक है। तो आपने ये सारा लिंक निकालना है। यू कैन नेवर डू डाई टेस्ट आफ्टर डूइंग मायोमेक्टमी। अगर आप मिस भी कर दिया डाई टेस्ट करना एंड यू हैव डन द मायोमेक्टमी एंड सूचरिंग, it is absolutely wrong to do the dye test at that point, क्योंकि वो आपके स्टिचेस भी खोल सकता है। डाई अनस्टरलाइज चीज़ है, वो अच्छी भली आपकी सर्जरी में से गुजर के सारा काम खराब करेगी। तो डाई टेस्ट अगर करना ही है मायोमेक्टमी में तो पहले करना है, ठीक है। या फिर अगर आपसे मिस भी हो गया तो आप कह सकते हो कि मैं 3 महीने के बाद दोबारा इसकी पेटेंसी तो चेक करूंगी ट्यूब्स की, तो मैं तब ट्यूबल चेक कर लूंगी, बिकॉज सर्जरी का भी तो इफेक्ट होता है ट्यूबल पेटेंसी पे। मैम लेकिन अगर आपने अभी डाई टेस्ट करना है, सॉरी लेट मी टॉक, एंड पे अगर कोई क्वेश्चन आपका बचेगा तो आप पूछे, हो सकता है मेरी बात से आपको जवाब मिल जाए। अगर डाई टेस्ट आपने करने के क्या बात पॉजिटिव बातें और ना करने के, करने की पॉजिटिव बातें ये हैं कि उस वक्त आपको स्टेटस पता चल जाता है ट्यूब्स का, जो कि आप पेशेंट के और उसके अटेंडेंट्स को काउंसल कर सकते हो कि क्या वो है कि उसका ट्यूब्स सर्जरी से पहले या एट द टाइम ऑफ सर्जरी ट्यूबल स्टेटस क्या था। दूसरा ये कि जब आप डाई टेस्ट करते हो तो आपको जब कैविटी अगर ओपन होती है ड्यूरिंग मायोमेक्टमी, तो वो ब्लू कलर की कैविटी से आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि एंडोमेट्रियल कैविटी ओपन हुई या नहीं हुई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मायोमेक्टमी में मेंशन करने का। अगर कोई फेवर में है कि डाई टेस्ट नहीं करना, क्योंकि कई हॉस्पिटल्स में ड्यूरिंग मायोमेक्टमी डाई टेस्ट नहीं किया जाता, उसकी क्या पॉजिटिव बातें हैं? उसकी ये पॉजिटिव बातें हैं कि एक तो ये कि डाई है अनस्टरलाइज्ड चीज़, अभी डालने का क्या फ़ायदा अगर मैंने 3 महीने के बाद इसका ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट करना है, क्योंकि मायोमेक्टमी के बाद अगर ट्यूब्स इस वक्त पेटेंट है और मैंने मायोमेक्टमी कर दी तो उसके बाद भी तो ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए फर्दर फर्टिलिटी प्लान की तरफ जाने से पहले मैं इसका एक और ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट ज़रूर करूँगी आफ्टर 3 मंथ्स। तो आपके डिपार्टमेंट में जो होता है आप दोनों चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव करके बता सकते हो। अगर आपके डिपार्टमेंट में ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट होता है ड्यूरिंग मायोमेक्टमी तो उसकी पॉजिटिव बातें मैंने बता दी हैं, अगर वो भी ठीक है। अगर नहीं होता तो उसकी भी मैंने आपको बता दी है कि आपने क्या जवाब किस तरीके से देना है, तो वो भी ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़, जिस तरह सबा पूरा आपने सर्जरी बताई, इसमें कोई भी काम की बात नहीं बताई। इट्स नॉट, देखो ये तो शायद सर्जन भी कर ले स्क्रू डाल के मायोमा निकालना, तो गायनेकोलॉजिस्ट को ही क्यों करना है मायोमेक्टमी? उसको देखना है एंडोमेट्रियल कैविटी ओपन हुई या नहीं हुई, उसको देखना है कि मैंने मिनिमल ब्लड लॉस किस तरह करना है कि इसकी एडिशंस ना बने। उसको स्टेप्स लेने हैं देखने के लिए कि एडिशंस मिनिमाइज कैसे की जाए, ब्लड लॉस मिनिमाइज कैसे किया जाए और एडिशंस मिनिमाइज कैसे किए जाए, because it's not just myomectomy, it's a myomectomy in a subfertile patient. What you did was just give incision on the uterus, जैसा longitudinal, I don't know, no logic। अभी मैं आपसे पूछूंगी आपने longitudinal क्यों दिया, ट्रांसवर्स क्यों नहीं, no logic। मायोमा पकड़ के निकाला है, ऐसे केस में जितना मर्जी ब्लड लॉस हो रहा है, जैसी मर्जी हैंडलिंग हो रही है, एडिशंस बनेगी, ट्यूबें बंद होंगी। बात तो ये है कि पता चले कि कल को ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट हो तो पता चले कि किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने सर्जरी की है, सर्जन ने नहीं की, कि ट्यूब्स के कोई एडिशंस नहीं बनी, ब्लड लॉस इसका मिनिमल रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा, और कैविटी खुली कि नहीं। फिर ये इंशाल्लाह जब कंसीव करती है तो आपने उसको डिलीवर करना है, सिजेरियन करना है, क्या करना है, कैविटी खुली है ना खुली। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स, अगर आप नहीं बोलोगे तो यू शुड नॉट पास, ठीक है ना। मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि यही तो मायोमेक्टमी में इम्पोर्टेंट बात है। एंड इफ यू डोंट कवर दीज थिंग्स तो ये इट्स देयर इज नो पॉइंट इन ये सर्जरी एक्सप्लेन करने, यानी कि यू स्टार्ट विद यूए, यू डिसाइड फॉर द इंसिजन। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज डन इन एवरी डिपार्टमेंट। You decide for the decision considering your examination and the nature of the mass,
एंड देन यू डू देन इंट्राऑपरेटिवली, स्पेशली इसके अंदर आपको पता होना चाहिए ब्लड लॉस कैसे मिनिमाइज किया जाता है। यू शुड नो द ऑप्शंस। आप कहोगे कि मैं टोनिक यूज़ करूँगी या मैं यूट्रेन को पहले पकड़ लूँगी या फिर मैं वेसोप्रेसिन मेरे डिपार्टमेंट में होता है मैं वो लगा लूँगी, क्योंकि अगर ब्लड लॉस मिनिमाइज होगा, एक तो इस पेशेंट की पहली HP 9-10 है, 4 ब्लड ही लगा के आई हुई है, तो क्या मैं धड़ा अगर ब्लड लॉस करा दूंगी? इंसिजन से पहले तो ये बातें करनी है। उसके बाद जेंटल हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है। एंड पे आते हुए मैं उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्ट कर दूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने ज़रूर करनी होती हैं। और किसी ने कोई और चीज़ ऐड करनी है? आप बताएं डॉक्टर तहजीब, क्या क्वेश्चन करना था आपने? मैम हाइलुरोनिक एसिड क्यों इंजेक्ट करेंगे? आप बताओ। मैडम वो एडियंस को कम करने के जी। लिए। मतलब मैडम सर्जिकल भी वही होती है। मैडम सर्जिकल भी वही डाल सकते हैं ना? यस, अब कहते हैं सर्जिसेल वगैरह का भी है, लेकिन हाइलुरोनिक एसिड इज बेटर। अगर आपके पास ऑप्शन है तो इट्स बेटर टू गेट द हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन फॉर दिस। मैम ये कहाँ इंजेक्ट करना है? यूट्रस में? स्पेल कर देते हैं ना, पेल्विस में, नॉट ऑन यूट्रस ओनली। आप अपने स्टिचेस जो यूट्रस के ऊपर लगे हैं, देन टुवर्ड्स ट्यूब एंड पीओडी उसे थोड़ा सा इंजेक्ट स्पेल कर देते हो। डॉक्टर में मैंने भी क्वेश्चन करना है इम्पोर्टेंट। मैम अगर यही एंड आगे कर लो। मैडम मुझे ये बता दें कि 50 इयर्स ओल्ड है एक लेडी, 50 इयर्स ओल्ड है। पहले ये वाला सिनेरियो, सॉरी सुनहरा पहले ये वाला केस। मैम अगर यही फाइब्राइड 26-28 वीक का हो और सब म्यूकोजल फाइब्राइड हो, तो क्या मैं उसी इतने बड़े फाइब्राइड में भी हम ट्रिपल प्रेगनेंसी पहले करेंगे? देखो वही बात है, अगर आपके डिपार्टमेंट में होता है देयर इज नो हार्म कि आप कह दो कि मैं करके देख लूंगी ट्यूबर ट्यूब्स का स्टेटस। कई दफा उसमें भी डाया आ जाती है, वो सिर्फ आपको काउंसलिंग में हेल्प करता है। मैम फिर इतने बड़े फाइब्राइड में कैनुला किस तरह से डाय ऊपर तक फॉलोपियन ट्यूब तक चली जाएगी? कई दफा आ सकती है, ट्यूबर ठीक भी होती है। अच्छा मैम, ड्यूरिंग सर्जरी मैमोग्राम में वो जो हम 100 ml नॉर्मल सलाइन डालते हैं फॉर एडिशन प्रिवेंशन, उसका मैम क्या रोल है? अब नहीं डालते। It's better to stay in touch और updated रहना is very very important. You need to study the talk articles and guidelines. अब इसका कोई ख़ास रोल नहीं है। It's all about the hyaluronic acid. उसके डिफरेंट तरह के केमिकल्स अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, वो यूज़ होते हैं। सर्जिसेल की बात अभी किसी ने की, अब ये बात भी आ रही है कि सर्जिसेल डज द सेम फंक्शन बट इवन देन हाइलुरोनिक एसिड इज सुपीरियर। अच्छा मैम, अब इसकी इनफर्टिलिटी कैसे आगे करेंगे? मतलब आगे अब इनफर्टिलिटी के लिए क्या करेंगे? उसके बाद 3 मंथ्स आपने तो सीधा लेके जाना है। आपने कहना 3 मंथ्स बाद मैंने ट्यूबल पेडेंसी चेक की, वो ठीक है, आई कैन टेक हर एज लाइक फॉर द ओव्यूलेशन इंडक्शन ऑब्लिग IUI। आई विल डिस्कस विद द पेशेंट एक्सेप्ट कि मैम इसको स्पॉन्टेनियस के लिए नहीं छोड़ेंगे? नहीं, वो ना वेट करो। शी इज ऑलरेडी मैरिड फॉर 7 years, शी हैड अ सर्जरी ऑलरेडी। इट्स बेटर टू गो अहेड विद एग्रेसिव ट्रीटमेंट नाउ। मैडम अगर इस पेशेंट में हस्बैंड फैक्टर होता, अगर मतलब डिपेंड करता है कितना है, फिर वरना IUI प्रेफर कर लेते हैं या फिर वो। मैम हम ये पूछ सकते थे पेशेंट को, मतलब फॉर पर्पस ऑफ काउंसलिंग, एक ये देखने के लिए कि बिफोर सर्जरी उसकी ट्यूब्स पेटेंट है या नहीं, सेकंड उसका ये कंफर्म करने के लिए गुड कि मतलब रिकरेंस हो रही है नहीं, मतलब ये हमने अगर पहले से एड्रेस नहीं करना, और थर्ड की परसिस्टेंस ऑफ ब्लीडिंग हो भी सकती है इसके बाद, आपकी सर्जरी के बाद भी, तो इसको मतलब पहले से एड्रेस करना है या नहीं करना? नहीं करना। परसिस्टेंस ऑफ ब्लीडिंग की इसमें बात नहीं करनी, क्योंकि इफ अ फाइब्रॉइड इज देयर व्हिच इज इंडेंटिंग द कैविटी, तो मोर देन 90% चांस दैट इट इज द कॉज ऑफ ब्लीडिंग, एंड ब्लीडिंग मोस्टली 99% स्टॉप आफ्टर सर्जरी, वो ठीक हो जाएगी। मैम आप ये बात कह रही थी ना फाइब्रॉइड पे इंसिजन लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसवर्स की, ये थोड़ी मैम बात बता दे। लॉन्गिट्यूडल ट्रांसवर्स देखो मोस्टली ये होता है कि इंसिजन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। इंसिजन डिपेंड करता है कि लेटर ऑन एडिशंस बने, दूसरा ये कि फाइब्रॉइड का ट्यूब से क्या लिंक है। कहा जाता है कि जो पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड है उसको निकालते हुए एडिशन सबसे ज़्यादा बनती हैं जो लेटर ऑन ट्यूबल ब्लॉकेट को काम देती हैं। पहले ज़माने में ये होता था कि वो कहते थे कि पोस्टीरियर वॉल इंसिजन दे ही ना, यूट्रस की अगर पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड है यूट्रस के इंटीरियर वॉल में इंसिजन दें, कैविटी के अंदर जाएं, फिर आप कैविटी के अंदर जाके पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड निकालें। डू नॉट गिव इंसिजन इन द पोस्टीरियर वॉल। इतना बड़ा अजीब सी ये बात लगती है। अब हम पोस्टीरियर वॉल पे इंसिजन देते हैं। जो मोस्टली कहा जाता है कि पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड है गिव अ वर्टिकल इंसिजन, और एंटीरियर वॉल फाइब्रॉइड है तो ट्रांसवर्स इंसिजन। फंडस के पास है तो यू जस्ट नीड टू सी के ट्यूब्स के कितने करीब है, सो दैट आप अकॉर्डिंगली यू हैव टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द ट्यूब्स। तो उस तरीके से हो जाता है। ठीक है मैडम उसी की वाइवा क्वेश्चन हुआ था
कि आपका पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड है, तो आप कैसे अप्रोच करेंगी? आप एंटीरियरली अप्रोच करेंगी कि पोस्टीरियरली अप्रोच करेंगी? एंटीरियरली इतना कैविटी को डैमेज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप एंटीरियर खोलो फिर कैविटी के अंदर जाओ, फिर कैविटी की पोस्टीरियर वॉल खोलो और फिर फाइब्रॉइड निकालो। ये मैम पहले बुक्स जमाने में में ऐसे ही होता लिखा था। हुआ है मैडम, मैंने बड़ी जगह और ढूंढा मैम है। अगर सभी को सिर्फ फाइब्राइड हो, बड़ा फाइब्राइड हो और मोस्ट प्रोमिनेंट वाली जो बात होती है, तो फिर वहां पर मैं सभी को वहां तो पे फाइब्राइड दोगे पे, जी, तो मैम उसमें फिर सब मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट फिर कहाँ तो से कैविटी आएगी? खोलेगी ना। फिर आप जी एंटीरियर वॉल दे दो इंसिजन। अगर आपको सब लो म्यूकोसा में मोस्ट प्रोमिनेंट नहीं पता चल रही तो आप फिर एंटीरियर वॉल लो लो ट्रांसवर्स इंसिजन दे दो। ओके मैम। ठीक है, चलो। अच्छा, गुड। मैम सो वी आर एंटीरियर डन। मैम इसमें चाहिए सॉरी, मैं भी आपकी डॉक्टर लेती हूँ। एक फायजा का क्वेश्चन था। फायजा, आप तो अपना केस क्लास में ही कर लेना। इट्स बेटर कि अगर आप मुझे ना उसकी समरी भेज देना, फिर आपका हम एडजस्ट कर लेते हैं कमिंग वीक में। सुनहरा, आपका भी कर लेते हैं। मैं तो कहती हूँ बिकॉज अब क्लास भी लंबी हो गई है, तो वी कैन डिस्कस द होल केस एक्चुअली। आप दोनों अगर मुझे केस अपना अपना भेज दो तो मे बी विद डॉक्टर मेरा मैडम एक क्वेश्चन है, मैंने वो भेजा हुआ है, एक मैसेज मैंने भेजा था, आपने चेक